Namaskar. In the geomorphology series, we completed topics related to the landforms, plate tectonics. Now we will discuss earthquake. Only two topics remains left. One is the earthquake. Earthquake. Another one is volcanoes या volcanic eruption या volcanism. तो आज हम जो है अर्थक्वेक के बारे में बात कर लेते हैं और कल हम जो है वॉल्केनिज्म के बारे में बातें करेंगे या वॉल्केनोस के बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक से रिलेटेड हम जो है डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमारा होगा इसका इंट्रोडक्शन। नंबर 2 पे क्या है कि कॉजेस। नेक्स्ट नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आएगा सीस्मिक जोन्स इन इंडिया। ये जो डिफरेंट सीस्मिक जोन है इंडिया के, कहीं पे अर्थक्वेक कम आता है, कहीं पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। क्यों हम किसी पार्टिकुलर रीजन को एक सीस्मिक जोन में रखते हैं, किसी को दूसरे में, उसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या काजेज हैं, इसके काजेज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्केल। स्केल के बारे में, जिसमें हम रेक्टर और मर्कल्ली स्केल दोनों को डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे। सीक्वेंस वाइज पहले इंट्रोडक्शन की बातें करते हैं, फिर उसके बाद काजेस के बारे में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अर्थक्वेक अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट नंबर पे हम जो है सीज्मिक जोन्स इन इंडिया। उसके बाद वो सीज्मिक जोन अलग अलग जोन में इंडिया को क्यों डिवाइड किया गया। फिर जो है स्केल के बारे में बातें करेंगे, जो अर्थक्वेक के मेजरमेंट्स के स्केल्स हैं। व्हाट इज द अर्थक्वेक। तो पहले हम बातें करें इंट्रोडक्शन अर्थक्वेक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अर्थक्वेक। व्हाट इज द अर्थक्वेक। shivering, shaking of the surface known as the earthquake. What is the earthquake? Vibration, shaking, shivering of the surface, shaking, shivering, vibrations of the earth surface because of the sudden release of the energy from a source, from a origin, from a site, from a place. Shivering, shaking, vibrations of the earth surface due to the release of energy from a place known as the earthquake. तो earthquake हमारा क्या है? It is a form of energy. It is a form of energy. It is a form of energy. earthquake क्या है? It is a form of energy of wave motion, energy of wave motion. It is a form of energy of wave motion transmitted through surface layer of the earth. This energy, this wave energy is transmitted through the surface layer. This transmitted energy
This wave of motion, wave of energy is transmitted through the surface layer of the earth, layer of the earth. This wave energy in widening circle from a point of sudden energy release and widening in circle from a source of sudden energy released. It is a form of energy of wave motion transmitted through the surface layer of the earth. This wave motion is widening in circle from a source of sudden energy release known as the earthquake. कितना लंबा प्रोसीजर है ये earthquake? It refers to, in other words, we can say it refers to shivering, shaking, and vibrations of the earth surface and vibration of the earth surface because of the sudden energy release, because of the sudden energy release from a source. It refers to shivering, shaking, and vibrations of the earth surface because of the sudden energy release from a source, from a origin known as the earthquake. Earthquake क्या है? It is a form of energy of wave motion. ये जो है एनर्जी की एक तरह से फ्लो है, एनर्जी मोशन है जिसमें वेव के द्वारा एनर्जी फ्लो होती है। ये एनर्जी या ये वेव मोशन जो है सरफेस के डिफरेंट लेयर से, अर्थ सरफेस से होकर के, अर्थ के डिफरेंट लेयर से होकर के सरफेस तक पहुंचती है। अर्थ सरफेस के डिफरेंट लेयर से होते हुए ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है। ये जहां से उद्गम होती है वहां पे सर्कल में ऐसे नाचती रहती है और बढ़ती रहती है, चारों तरफ फैलता रहता है सर्कल, और इस तरह से ये सरफेस पे पहुंच जाती है। जब ये सरफेस पे पहुंचती है तो इट्स क्रिएट शिवरिंग, शेकिंग एंड वाइब्रेशंस इन द सरफेस। दिस एनर्जी motions create shivering, shaking and vibrations in the earth surface. Hence it is called the earthquake. तो earthquake को हम किससे करते हैं? It is the connotations of the destructions, devastations, hazards that ended the life. The life cycle is closed. It creates obstacles in the general रूटीन वर्क ऑफ द लाइफ। इसके कारण जनरली लाइफ में हमारी जो भी प्रक्रियाएं जो है दिनचर्याएं होती हैं वो रुक जाती हैं। इसीलिए हम इसको एक तरह से डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा अर्थक्वेक ही है। अब सवाल यह है कि अर्थक्वेक के जो है बारे में अगर हम पढ़ते हैं, द वेव जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक is called seismic wave. The wave generated by the earthquake
द वेव generated by earthquake is called seismic wave। जो ये वेव तरंगें जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के द्वारा, उन तरंगों को हम वेव कहते हैं। The magnitudes of the energy released is measured by Richter scale. The magnitude of energy released by these waves is measured by Richter scale। ये वेव के तरंगों के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी तीव्रता, उसकी मैग्नीट्यूड्स को हम मेजर करते हैं एक स्केल पे। उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एनर्जी रिलीज इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। इन तरंगों की जो तीव्रता है, जो इनकी शक्ति है, उसकी मैग्नीट्यूड्स को, उसकी तीव्रता को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। उस पैमाने का नाम है रिक्टर स्केल। दिस मेजरमेंट्स यूनिट रेंजेस फ्रॉम 0 to 9। द यूनिट्स ऑफ द रिक्टर स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 9। ये जो रिक्टर स्केल है उसको हम रिक्टर स्केल को हम द यूनिट्स in Richter scale is ranges units in Richter scale is ranges from 0 to 9। It based on logarithmic principle। It is based on logarithmic principle, यानी ये लॉग पे फॉलो करता है। लॉग का जो उसूल, जैसे कि एक यूनिट से 2 यूनिट्स, 0 से लेकर के 9 यूनिट्स तक इसका तो एक स्केल होता है। ये जो है लॉग के फार्मूले पे वर्क करता है। यानी एक अगर रिक्टर स्केल पे कहीं पे सीज़मिक वेव नोट की गई और कहीं पे 2, तो उन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंसेस होगा वो 10 यूनिट्स का होगा। 2 और 3 के बीच में होगा वो कितना हो जाएगा? 1 से 3 के बीच में हमारा हो जाएगा 100 यूनिट। 1 से 4 के बीच में कितना हो जाएगा? 1000। तो ये 10 का मल्टीपल, दैट इज द लॉग। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ logarithm और logarithmic principle। There is no upper limit of these। There is the no upper limit of Richter scale। Richter scale का कोई ऊपरी सीमा नहीं होता, गर्चे इस पे शो किया जाता है स्केल पे 0 से 9 यूनिट्स तक ही, लेकिन ये बियॉन्ड 9 भी इसको मेजर किया जाएगा और अर्थक्वेक अगर आया तो उससे भी बियॉन्ड मेजर किया जाएगा, इसलिए इसका कोई ऊपरी सीमा नहीं होता। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द फोकस। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द फोकस। द प्लेस of origin of the earthquake is known as the focus। In general, the origin source of the earthquake is located inside the earth। आम तौर से जो ओरिजिन सोर्स होता है, जहां से ये तरंगें रिलीज होती हैं स्टार्टिंग में, वो जो है नीचे ही होता है, जमीन के कहीं भीतर ही होगा, ऊपरी सरफेस पे नहीं होता जिस पे हम रहते बसते हैं।
इसका कहने का तात्पर्य है कि ये जो फोकस है अर्थ का, हमेशा और हमेशा अर्थ के अंदर ही होता है। एनर्जी रिलीज जो है जहां से होती है, जहां से ये उद्गम होती है, जहां से ये वो सोर्स जहां से स्टार्ट होती है ये तरंगें अर्थक्वेक की, उसी को हम फोकस कहते हैं। ये फोकस आमतौर पे जमीन के भीतर ही कहीं पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं फोकस। द ओरिजिन प्लेस ऑफ दीज वेव्स इज कॉल्ड द फोकस। अगर इसको डायग्राम के तौर पे समझा जाए तो कुछ इस तरह से होगा। मानते हैं ये अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है ये फोकस यहां से लेकर के यहां पे कभी फोकस हो सकता है, कभी यहां 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 हो सकता है, लेकिन अर्थ के ऊपरी हिस्से पे यानी इस पे फोकस कभी नहीं हो सकता, यहां फोकस कभी नहीं होगा। फोकस हमेशा सरफेस के नीचे ही रहेगा, चाहे कुछ ही डेप्थ में हो। मान लेते हैं कि अर्थ का एक फोकस यहां पे है, एक पॉइंट हमने बनाया, ये फोकस है, यहां से एनर्जी रिलीज हुई, स्टार्टिंग में वेव तरंगें यहां से फैली तो ये चारों तरफ ऐसे फैलती रहेंगी, ऐसे सर्कल में, ऐसे सर्कल में चारों तरफ ये फैलती रहेंगे, ऐसे फैलती चली जाएंगे। तो जहां से अर्थ के अंदर वेव या तरंगें स्टार्ट होती हैं उसी को हम फोकस कहते हैं। वो उद्गम वाली स्थान जहां से सबसे पहले ये सीज्मिक वेव या सीज्मिक या जो है भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है उसी को हम फोकस कहते हैं। ये जहां आम तौर से अर्थ के भीतर ही कहीं ना कहीं होगा। द प्लेस परपेंडिकुलर टू द फोकस, द प्लेस vertically located to the focus is called the epicenter. The place perpendicular to focus at surface is called epicenter. Epicenter. Epicenter, it is the nearest place, nearest points at surface it is the nearest place at surface from focus where maximum devastation, where maximum magnitudes of the energy is recorded, where maximum devastation is noticed, where maximum energy is magnitudes of the energy is recorded. Magnitude of energy is recorded, where maximum devastation is noticed, known as the epicenter. यहां पे कहीं पे अर्थ पे अंदर भीतर पे ये जो जगह है यहां पे कहीं पे तरंगों स्टार्ट हुई, ओरिजिन हुई, उसको हमने क्या कहा, फोकस कहा था। ये चारों तरफ फैलने लगी तरंगें। सबसे पहले ये तरंगें जहां पे पहुंचेंगी जो सरफेस पे नियरेस्ट हिस्सा होगा, तो सरफेस का नियरेस्ट हिस्सा कौन सा हमारा, ये वाला पॉइंट है। मान लेते हैं हम ई पॉइंट जो हमारा सरफेस पे है, और ये वाला हिस्सा जो अंदर वाला है इसको हमने क्या लिखा, एफ लिखा। तो ये इसके परपेंडिकुलर नियरेस्ट प्लेस जो है सरफेस पे उसी को एपिसेंटर कहा जाएगा। एपिसेंटर में सबसे पहले ये तरंगें नोटिस की जाएंगी। जब सबसे पहले एपिसेंटर पे ये तरंगें नोटिस की जाएंगी इसका मतलब सबसे ज्यादा डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, हजार्ड्स, डिजास्टरस एक्टिविटी इसी एपिसेंटर पे होगा, क्योंकि ये फोकस से सबसे ज्यादा करीब होंगी। ये फोकस से सबसे ज्यादा करीब हैं, ये फोकस की तरंगें सबसे ज्यादा फास्ट सबसे पहले वही नोटिस की गई, एपिसेंटर उसी को हम कहते हैं। तो द प्लेस परपेंडिकुलर टू द फोकस एट द सरफेस,
इपीसेंटर हमेशा सरफेस पे होता है जिस पे हम रहते बसते हैं। फोकस हमेशा इनसाइड द अर्थ, हमेशा अर्थ के भीतर ही होगा। इपीसेंटर फोकस के परपेंडिकुलर या वर्टिकली जो नियरेस्ट पॉइंट सरफेस का होगा, जहां पे तरंगें सबसे पहले नोटिस की जाएंगी, उसी को इपीसेंटर कहा जाएगा। इट इज द नियरेस्ट प्लेस एट द सरफेस फ्रॉम द फोकस वेयर मैक्सिमम डिवास्टेशन is noticed, where maximum magnitudes of energy is recorded। जहां पे सबसे ज्यादा तीव्र की गति की तरंगें रिकॉर्ड की जाएंगी सरफेस पे, उसी को एपीसेंटर कहा जाएगा। सबसे पहले जहां तरंगें रिकॉर्ड की जाएगी उसी को एपीसेंटर कहा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट्स of the focus may be up to the 700 किलोमीटर from the surface। ये फोकस जो है, जो जहां से ये तरंगों का उद्गम होता है, वो कितना डेप्थ में हो सकता है? मैक्सिमम डेप्थ इसका 700 किलोमीटर तक ही हो सकता है। यानी ये तरंगें जो स्टार्ट होती हैं, ये 700 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ में नहीं हो सकती। ये ओनली और ओनली 700 किलोमीटर डेप्थ से ही स्टार्ट होती हैं। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द फोकस में बी 700 किलोमीटर। कहां से 700 किलोमीटर? सरफेस से। मान लेते हैं यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये वाली लाइन जो है ये क्या है? हमारा 700 किलोमीटर का एक रेडियस है, 700 किलोमीटर। ये इतने वाले जोन में ही फोकस खाली बन सकता है, यहीं से तरंगें कहीं स्टार्ट हो सकती हैं। 700 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ में कहीं पे भी फोकस नहीं हो सकता। यानी ये सीज्मिक वेव कहां तक या एक अर्थक्वेक कहां तक आ सकता है? अर्थ के भीतर 700 किलोमीटर डेप्थ तक ही अर्थक्वेक आएगा जमीन के भीतर। उससे नीचे कहीं पे भी अर्थक्वेक नहीं आ सकता जमीन के भीतर। तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ द फोकस में बी 700 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो डीपेस्ट पॉसिबल फोकस में बी अप टू द 700 किलोमीटर। एक है हमारा सीज्मोग्राफ। द अर्थक्वेक रिलीज्ड एनर्जी, दीज एनर्जीज आर रिकॉर्डेड, these energies are recorded or measured by the seismograph at epicenter। These energies are recorded, these energies are measured by the seismograph at epicenter। एपीसेंटर पे ही इसको पहले मतलब मेजर करते हैं हम, क्योंकि एपीसेंटर पे हम पहले नोटिस करते हैं अर्थक्वेक को। फोकस इसका कितना डेप्थ में है बाद में फिर उससे हम पता करते हैं एंगल से। तो सीज्मोग्राफ क्या है? द अर्थक्वेक रिलीज्ड वेव्स आर रिकॉर्डेड और मेजर्ड बाय द सीज्मोग्राफ एट एपीसेंटर। अगला हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक्स। अगला हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या काजेस हैं? सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक के काजेस को। नंबर 1 पे हमारा जो है वुल्केनिसिटी। नंबर 1 पे हमारा कॉज जो है अर्थ के वुल्केनिसिटी। वुल्केनिसिटी अर्थक्वेक के क्या क्या काजेज हैं? फर्स्ट काज हमारा जो है अर्थक्वेक का वुल्केनिसिटी। one term is the volcanoes, another one is the volcanicity। volcanoes means eruption of the lava from a vent। volcanoes means eruptions of the lava from a vent। जो लावा नीचे एक पाइप से निकल करके ऊपर कहीं जमा हो जाता है उसी को हम वॉल्केनोस कहते हैं। बट वॉल्केनिसिटी इट इज ए प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम द अर्थ, from the earth। The molten magma erupted from a vent and deposited over the surface
द होल procedural aspect is called the volcanicity. जो लावा निकल करके कहीं पे जमा हो गया, इस प्रक्रिया को हम वॉल्केनोस कहते हैं, लेकिन पूरे प्रोसीजर को हम वॉल्केनिसिटी कहते हैं कि लावा नीचे मेल्ट होता है, पहले किसी जगह पे एक तरह से प्रेशर कम हो जाता है, वहां पे गैप हो जाए, अर्थ से लावा अंदर से मैग्मा जो है निकलने लगे, ऊपर अलग अलग रूप धारण कर ले, ऊपर कहीं पे डोमल शेप बनाता है, कहीं पे शील्ड बनाता है, कहीं पे प्लेटो बनाता है, कहीं पे पिरामिडल पीक बनाता है, कहीं पे कोनिकल शेप बनाता है, कहीं पे सिंडर कोन बनाता है। ये सारे फीचर्स और अलग अलग रूप और अलग अलग पूरी पूरी प्रक्रिया, ये वॉल्केनिसिटी कहलाती है। वॉल्केनिसिटी के बाद जो है हम देखते हैं कि ये वॉल्केनोज या वॉल्केनिसिटी अर्थक्वेक के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। इसमें होता क्या है कि मैग्मा राइजिंग फ्रॉम दी, इसमें होता क्या है कि मैग्मा राइजिंग फ्रॉम ए conduit, from a vent, from a pipe, and exerted pressure at the surface, and exerted pressure at the surface before, during and after eruption. Before, during and after eruption. An exerted pressure at the surface before, during and after eruption. सपोज दैट ये सरफेस है, मैग्मा यहां से निकलता है, जब मैग्मा नीचे से निकलेगा तो ये कहीं पे आकर के ऐसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है। जब ये मैग्मा कहीं से निकलेगा तो इसमें एक तरह से नीचे से ये क्या है, प्रेशर लगाएगा, पुश करेगा इसको, तो नीचे से जब पुश करेगा इसको तो एक तरह से प्रेशर लगेगा, इसके कारण एक शिवरिंग, शेकिंग या वाइब्रेशन क्रिएट होगा इन एरियाज में, ये पूरे के पूरे एरियाज में जहां पे ये कंडक्ट है, ये पूरा हिस्सा जहां से, क्योंकि ये साइड का लावा ही यहां पे आकर के इसी तरह से निकल रहा है, तो एक सर्टेन एरियाज में कहीं ना कहीं ये पूरे एरियाज में शेकिंग, शिवरिंग या एक तरह से वाइब्रेशन क्रिएट होगा ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अपवेलिंग ऑफ द लावा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। इसी को हम कहते हैं वॉल्केनिसिटी। इसके कारण एक तरह से अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक जो है लावा निकलने से पहले भी अर्थक्वेक आ सकता है, यानी जब वो माहौल या मौसम बना रहा होगा लावा इरप्शन के लिए तब भी अर्थक्वेक आता है। कभी कभी जब लावा निकल रहा होता है तो उसके बीच पीरियड में भी अर्थक्वेक आ जाता है। कभी कभी ये जो है निकल करके बंद हो चुका होता है उसके बाद भी अर्थक्वेक आता है। इसकी बेस्ट मिसाल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे कराकटाओ वॉल्केनो 1883 इन जावा। कराकटाओ जो है वॉल्केनो कराकटाओ वॉल्केनो इन 1883 इन जावा। एक्चुअल जो सुंडा ट्रेंड है, सुंडा स्ट्रेट है, वहीं पे एक कराकटाओ जगह है, वहीं पे एक बार वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ था। 1883 की आसपास की बात है। कराकटाओ एक तरह से ये मलेशिया में जो जावा आइलैंड्स है उसी के नीचे सुंडा स्ट्रेट है, वहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ 1883 में। इतना भयानक, इतना खतरनाक, इतना डेंजरस ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कि इसकी आवाजें सुनी गई थी। पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया अप्रोक्सीमेट 3000 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे इसकी आवाजें सुनी गई। पूरा एटमॉस्फेयर एक तरह से डस्ट से
पूरा का पूरा जो है ढक गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, उसी के साथ साथ इतना ज्यादा साउंड से निकल करके, लावा निकल करके यहां पे आया था कराकटाओ में, कि सुनामी भी आ गया। इतना तेज यानी कि शेकिंग या शिवरिंग हुई कि आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं वो ओशनिक वाटर उस पर आकर के सबमर्ज कर दिया, एक तरह से उनको ड्राउंड कर दिया। अर्थक्वेक भी आया, उसमें बारिश भी हुई, तो मड और कीचड़ की तरह बारिश हुई। धुआं जो है कराकटाओ से 40 किलोमीटर तक दूरी तक, 30 किलोमीटर तक दूरी तक जो लोग ओशन में थे उन लोगों ने देखा कि 10-10 मीटर्स तक के डायमीटर्स के कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े या एक तरह से राख के ढेर या टुकड़े उनके ऊपर नाव पे गिर रहे थे। इस तरह से खतरनाक ये एक तरह से वॉल्केनिक इरप्शन था वर्ल्ड हिस्ट्री में या ग्लोबल हिस्ट्री में। अगला हमारा है आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस। अगला हमारा है आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस ये कारण हमारा अर्थक्वेक का है। एक्चुअल हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ी थी कि लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ओवर द asthenosphere. Lithosphere, this is the lithosphere up to 100 kilometer. This is the asthenosphere. Asthenosphere is little bit plastic. It behave like a plastic. It is slippery. It is lubricant. जिसके कारण lithosphere is floating over the asthenosphere. जब कोई चीज किसी पे तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, तो उस पे क्या है, ये जो फ्लोटेशन वाली कंडीशंस या फीचर्स होगी है, उसमें क्या होती है, एक बायोएंसी फोर्स काम करती है। बायोएंसी फोर्स नीचे से किसी की चीज को ऊपर की तरफ पुश करती है, उसी को हम जो है बायोएंसी फोर्स करते हैं। एक्सर्टेड प्रेशर फ्रॉम बिलो फ्रॉम इनसाइड, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स है एक्सर्ट करती है, डालती है, उसी को हम बायोएंसी फोर्स कहते हैं। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स काम करती है, इसी को हमने बायोएंसी फोर्स कहा। और एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है जमीन, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बायोएंसी नीचे से ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशन ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह से कोई चीज जब ग्रेविटी और बायोएंसी दोनों फोर्स काम करती हैं, तब कोई चीज फ्लोट करता है। इसका मतलब यह है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो ऊपरी वाला पपड़ी हिस्सा है जिसमें हम रहते बसते हैं, ये क्रस्टल ब्लॉक अर्थ का या हार्ड सब्सटेंस जो अर्थ का जिसका बना हुआ है, जिसको हम प्लेट कहते हैं, ये कहीं ना कहीं पे एक स्लिपरी सरफेस पे तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, और उस पे ये प्रेशर कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे हो करके एक तरह से, ये प्लास्टिक है, लिक्विड है या फ्लूइड टाइप है, तो ऊपर की तरफ फोर्स इसमें काम करती है, इसको बायोएंसी करते हैं। ऊपर ग्रेविटी नीचे की तरफ, इस तरह से इसमें प्रेशर बैलेंसेस का काम होता रहता है, और इसी को हम आइसोस्टेसिस कहते हैं। तो आइसोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम लाइक ए कंडीशंस ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ नोन एज द आइसोस्टेसिस। आइसोस्टेसिस मीन्स equilibrium like conditions of the
तो हमेशा जो है अर्थ के ऊपर कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, इसका एक बैलेंस जो है कहीं ना कहीं जाकर के अपने आप एडजस्ट होता है, सेट होता है। उस वाले फीचर्स को हम आइसोस्टेसी कहते हैं। कभी कभी ये लोड जो है डिसबैलेंस हो जाती है तो उसको कहा जाएगा आइसोस्टेसिक स्टैटिक इम्बैलेंसेस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन लोड ओवर क्रस्ट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द लोड। आइसोस्टेटिक इम्बैलेंस का मतलब, आइसोस्टेटिक बैलेंस का मतलब द लोड exerted by the different block of the crust over the lower layer is equal। चाहे कोई माउंटेनियस एरियाज हो, कोई प्लेन वाला एरिया हो, कोई प्लेटू वाला एरिया हो, कोई जो ओसेनिक सरफेस है, सब अपने हिसाब से बैलेंस अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। उसी को आइसोस्टेटिक बैलेंसेस कहा जाएगा। लेकिन आइसोस्टेटिक इम्बैलेंसेस का मतलब होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन लोड ओवर क्रस्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोड ओवर क्रस्ट। मान लिया जाए ये क्या है, हमारा क्रस्ट है और ये उसके नीचे वाला हिस्सा है। अगर इसका लोड, क्रस्ट का लोड कहीं पे कम कर दिया जाए और कहीं पे लोड बढ़ा दिया जाए तो इंक्रीजिंग द लोड ओवर क्रस्ट, यानी यहां पे हमने एक हिस्सा और कोई लोड करके डाल दिया, यहां पे हमने एक और ब्लॉक ला करके ऊपर रख दिया, या कोई रिजर्वायर बना दिया और जबरदस्ती एक हिस्से पे हमने क्या किया, एक्सर्ट कर दिया, इंक्रीजिंग द लोड। तो इंक्रीजिंग द लोड ओवर क्रस्ट, अगर लोड क्रस्ट पे ज्यादा डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सबडक्शन होगा, सबडक्शन होगा या सिंकिंग होगा। हमने यहां पे बड़ा सा डैम बना दिया और पानी ला करके जमा कर दिया इस इलाके में, बहुत बड़े हिस्से में ऐसे, तो ये क्रस्ट पे हमने अननेसेसरी जबरदस्ती जो है लोड एक्सर्ट किया, ज्यादा लोड बढ़ा दिया, तो इस एरिया में ये एरिया क्या पचक जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो एरिया क्या है, पचक करके कम हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा इसका लेयर। तो क्या कहेंगे उसको, सबडक्शन एंड सिंकिंग। हमने लोड इस वाले हिस्से में घटा दिया। लोड घटाने का मतलब कि क्रस्ट का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हमने निकाल करके कहीं और लेकर के चले गए। अगर इसी क्रस्ट का ये वाला लाइन यहां तक था क्रस्ट का, एक्चुअल में हमने इसको ला करके कम कर दिया इसका लोड, तो अगर किसी चीज का लोड कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो इसको हम कहेंगे अपलिफ्टमेंट्स ऑफ द क्रस्ट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्रस्ट। क्योंकि लोड हमने घटाया, ऑटोमेटिक ये प्रेशर जो है ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो डिक्रीजिंग द लोड, लोड को घटाने से क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्रस्ट। इंक्रीजिंग द लोड, किसी चीज से ज्यादा लोड डाल दिया गया, रिजर्वायर बना दिया, डैम बना दिया, तालाब बना दिया, तो सबडक्ट होगा, पचक जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, इसके कारण क्या हुआ, सबडक्शंस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्रस्ट। जब ऐसी कंडीशंस हो जाएगी तो सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी इज टेकन प्लेस। ऐसी कंडीशंस में सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इज टेकन प्लेस। दिस एनर्जी विल कॉज अर्थक्वेक, दिस एनर्जी विल कॉज अर्थक्वेक। अर्थ का अपना एक इक्विबैलेंस है, अपने इस बैलेंस को अपने हिसाब से, कहीं पे माउंटेन है तो उसमें डेंसिटी मान के चलिए वो फूला हुआ हिस्सा है तो डेंसिटी वहां पे कम है, कहीं पे अर्थ का जो अपना ओशनिक सरफेस है उसका जो है वहां पे खूब डेंस है क्रस्ट उसका, तो वो बैलेंस को इसी तरह से बैलेंस किए हुए है, अपना एक तरह से इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अर्थ में है। लेकिन अगर उसका ऊपर सुपर इम्पोज्ड वाली अगर कोई भी लोड को घटाया जाए उसके, या बढ़ा दिया जाए, ओवरलोड कर दिया जाए किसी पार्टिकुलर हिस्से पे अर्थ के,
तो क्या होगा, जब लोड बढ़ाया जाएगा तो सबडक्शन हो जाएगा, सिंकिंग हो जाएगा उतना हिस्सा। अगर क्रस्ट का कोई हिस्सा का लोड डिक्रीज कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ फैल जाएगा, क्योंकि लोड ही उसको बैलेंस किए हुई थी। उसके कारण क्या है, जब ऊपर और नीचे कोई चीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज या तो पिचक गई या ऊपर उठ गई, तो इट्स रिलीज एनर्जी। दिस एनर्जी विल कॉज द अर्थक्वेक। दूसरा कंडीशन है कि आइसोस्टैटिक चेंजेस अकर्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक चेंजेस एंड क्लाइमेटिक प्रोसेसेस। एक तो ये हमने बताया। दूसरा कारण इसके बारे में हम अगर बातें करते हैं तो एक फैक्टर्स और ले लेते हैं हम आइसोस्टेसी के बारे में। आइसोस्टेसी के जो चेंजेस होते हैं, इसके बारे में अगर हम इसको इस तरह से समझे हैं दूसरी भाषा में, तो टेक्टोनिक चेंजेस या टेक्टोनिक प्रोसेसेस। दूसरा कारण हमारा जो है क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस का मतलब क्या होता है, लोड increases in oceanic water by या after melting ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है पोलर एरियाज में तो ओशन के का वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर ये लेवल ओशन वाटर का बढ़ गया इन केस, तो ये लोड भी हमारा बढ़ जाएगा। जब उसका लोड बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा कि लोड इंक्रीज इन ओशनिक वाटर आफ्टर मेल्टिंग ग्लेशियर, देन लोड एक्सर्ट प्रेशर, देन दिस लोड, अगर लोड बढ़ गया तो लोड एक्सर्टेड प्रेशर, दिस लोड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये क्या है हमारा आइसोस्टैटिक डिसबैलेंसेस होंगे। आइसोस्टैटिक डिसबैलेंस होगा। जो आइसोस्टैटिक डिसबैलेंस होगा उसके कारण हमारा जो है अर्थक्वेक आ जाएगा ओशन में। अर्थक्वेक इन ओशन। भाई हमने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग किया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ कि सारा का सारा ग्लेशियर अंटार्कटिका और जो है पोलर एरियाज का, ग्रीनलैंड का या हिमालयन एरियाज का मेल्ट हो गया। अगर ये सारा ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो यही पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा का सारा वाटर जो है कहां पे चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा। जब ओशन में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो उसका मतलब अननेसेसरी जो है लोड इस पे ओशन में बढ़ जाएगा। जब ओशन में अननेसेसरी लोड बढ़ जाएगा तो आइसोस्टैटिक डिसबैलेंसेस होंगे। आइसोस्टैटिक डिसबैलेंसेस का के कारण अगेन हमारा अर्थक्वेक आएगा। तो इसको कहा जाएगा क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण आया अर्थक्वेक। टेक्टोनिक के कारण का मतलब क्या है कि सुपर इनकम्बेंट प्रेशर इज रिड्यूस्ड। मान लेते हैं कि सुपर इनकम्बेंट प्रेशर इज रिड्यूस्ड। अगर सुपर इनकम्बेंट प्रेशर अगर घट जाए, यानी अर्थ के जो क्रस्ट के ऊपर जो प्रेशर है क्रस्ट का नीचे वाली लेयर पे, ये प्रेशर अगर घट जाए तो नीचे वाले लेयर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट्स विल डिक्रीज। और जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी किसी भी चीज की तो बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन होने लगेगा। उसमें क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शन होगा एंड अर्थक्वेक आएगा। ये हमारा टेक्टोनिक फैक्टर के कारण हम इसमें इस तरह से समझ सकते हैं इसको। अब हम आइसोस्टैटिक स्टैटिक डिसबैलेंसेस की, अगर इम्बैलेंसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे हमारा जो है आइसोस्टैटिक स्टैटिक TIC इम्बैलेंसेस।
इसमें नंबर ए पे हमारा जो है फॉल्ट है, नंबर एक पे हमारा जो है ए है फॉल्ट, और नंबर दो पे हमारा आएगा इलास्टिक रिबाउंड थियरी। तो नंबर एक में हमारा जो है फॉल्टिंग है। तो आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस की अगर हम बातें करें, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। वॉल्केनिक्स के के बाद हमने पढ़ा था आइसो स्टैटिक इम्बैलेंसेस, हमने इसको भी डिफाइन किया खाली ओनली। इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो हिस्सों में। नंबर एक में फॉल्टिंग है, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस के कारण जो है फॉल्ट क्रिएट हो जाता है बहुत सी जगहों पे, और ये जो फॉल्ट क्रिएट होता है इसके कारण अर्थक्वेक आता है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट कास्ड बाय इंडोजेनेटिक फोर्सेस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट। तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉल्टिंग में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल horizontal and vertical movements of crust, horizontal and vertical movements of the crust by endogenetic forces, by endogenetic forces creates faults, rupture and cracks, creates rupture, crack, also fold and fold. Horizontal and vertical movement of the crust by endogenetic forces creates faults, rupture। चाहे सरफेस पे जो कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके अंतर्गत देखा था कि प्लेट्स मूव कर रहे हैं, तो प्लेट्स अगर हॉरिजॉन्टल या मूव करते हैं या ऊपर नीचे मूव करते हैं किसी कारण भी, कभी कभार उसमें फोल्ड क्रिएट होता है, कभी कभार उसमें फॉल्ट क्रिएट होता है। ये फोल्ड और फॉल्ट अगर क्रिएट होगा उसके कारण जो है विच इन टर्न क्रिएट्स आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस इन क्रस्टल ब्लॉक, जिसके कारण अर्थ में जो है आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस होते हैं। These isostatic imbalances resulted earthquake। The horizontal and vertical movements of the crust by endogenetic forces by convectional currents, by convectional current theory, they creates faults, rupture, cracks and faults in the crustal blocks of the earth, which in turn create isostatic disbalance, disequilibrium, isostatic imbalances that resulted earthquake। इस तरह से हम कह सकते हैं कि sudden dislocations of the rock block caused by the tensile and compressional forces create the sudden dislocation of the crustal block caused by the tensile forces, caused by the compressional forces that creates rupture, fracture, joint, cracks, fault and fold। These fault and folds create disequilibrium in the isostatic balances of the earth crust, which in turn resulted the earthquake। अगली हमारी चीज है इलास्टिक रिबाउंड थियरी। हमने इसको पढ़ लिया। इसी में बी नंबर पे हमने लिखा इलास्टिक रिबाउंड थियरी। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस में नंबर ए पे हमने लिखा था फॉल्ट, नंबर बी पे हमने लिखा इलास्टिक रिबाउंड थियरी।
This theory is propounded by the Reed. This theory is given by the postulated by the Reed. रीड ने, एफ रीड या कौन थे ऐसे एक सज्जन व्यक्ति, उन्होंने ये थियरी दी, इलास्टिक रिबाउंड थियरी। इलास्टिक रिबाउंड थियरी का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड रॉक इज इलास्टिक, बिहेव लाइक ए रबर, इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इट कैन बी पुल्ड so long as it possesses elasticity. When pressure further exerted through the tensile forces, there is the chances of broken downs of these rocks because they cannot stretch beyond a limit. They cannot be lengthened beyond a limit. When they are broken, these rocks try again to reoccupy its previous positions. These rocks try to rebounds its previous positions and exerted pressure, exerted forces. These force create shaking, shivering, vibration in the earth, known as the earthquake. तो इलास्टिक रिबाउंड थियरी के बारे में बात करें, जो कि इसी फॉल्ट वाले का ही एक तरह से मिलती जुलती थियरी है हमारी है। इसको भी हम लिख लेते हैं यहां पे। इलास्टिक रिबाउंड theory given by Reed. इलास्टिक रिबाउंड थियरी में है कि अंडरग्राउंड रॉक्स आर इलास्टिक लाइक रबर एंड एक्सपेंड्स व्हेन स्ट्रेच्ड आर पुल्ड। इसके अंतर्गत है कि अंडरग्राउंड रॉक इज elastic and expand after stretching and pulling down. It expands. Rocks continue to be stretched so long as tensile forces do not exceed elasticity of the rocks. अगली बात इसमें कहा गया कि rock expands so long as tensile forces do not exceed rock expands so long as tensile forces do not exceed elasticity of the rock. Elasticity of the rocks. एक when tensile forces exceeds they broken. अगली बात कहा इन्होंने when tensile forces exceeds the limits they broken. The broken rock try to reoccupy its previous position and adjust its position. The broken rock try to reoccupy या rebounds its previous positions. When it rebounds,
when it's rebound its previous position, when it's reoccupy its previous positions, it exert a pressure, it exert a force. The crustal rocks create shivering and shaking known as the earthquake. इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के अंतर्गत रॉक जो अर्थ के अंदर है उस पे प्रेशर बनता है टेंसिल फोर्सेस के कारण। टेंसिल फोर्सेस का मतलब कि जो अपोजिट डायरेक्शंस में काम करती है। अगर कोई चीज रबर को जैसे हम खींचते हैं एक कोने को दोनों कोने को पकड़ करके, तो एक लिमिट तक उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसके बियॉन्ड अगर उसको खींचा जाता है तो वही रबर कहीं ना कहीं टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो उसका हिस्सा दूसरा कोना जो है जो बीच में टूटा हुआ, दोनों अपनी पोजीशंस पे पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। दे ट्राई अगेन टू रीऑक्यूपाई इट्स प्रीवियस पोजीशन, दे ट्राई टू रीबाउंस इट्स प्रीवियस पोजीशन। जब वो दोबारा अपनी पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे तब उसमें फोर्स लगेगा। इसके कारण क्या होगा कि उसी में अर्थक्वेक आएगा। कोयना डैम में काली कंडीशंस में यही बात कही गई थी साइंटिस्ट द्वारा या जियोलॉजिस्ट के द्वारा कि डैम पे जो ओवरलोडेड डैम है, पानी जो है उसका प्रेशर जमीन की तरफ गया, जमीन के यानी एक तरफ से उसको सिंक किया, एक तरफ से उसको सबडक्ट किया। जब सबडक्ट किया हो या सिंकिंग हुआ पूरे डैम का, तो उसमें कोई भी फोर्स या प्रेशर महसूस नहीं की गई। एक लिमिट तक उसका सबडक्शन या एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबमर्जेंस या एक तरह से सिंकिंग हुआ कोयना डैम का। जब वो बियॉन्ड लिमिट क्रॉस कर गया, जिस तरह इलास्टिसिटी क्रॉस कर गई, तो एकाएक वो ब्रोकन हो गया कहीं बीच में, और वो नीचे से फिर ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट किया और आसपास के सराउंडिंग एरियाज में वहां पे अर्थक्वेक आ गया था। इसको कहते हैं कोयना डैम वाला अर्थक्वेक। 1967 या उसके आसपास की बात है ये। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में, जिसको रीड ने दिया था कि अंडरग्राउंड रॉक इज इलास्टिक एंड एक्सपेंड्स आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड पुलिंग ड्यू टू द टेंसाइल फोर्सेस, ड्यू टू द टेंशन फोर्सेस। रॉक एक्सपेंड्स so long as tensile forces do not exceed its elasticity of the rocks. When tensile forces exceeds, they broken. After broken, the broken rocks try to reoccupy its previous position. The broken rocks try to rebound its previous positions and exert a force. This force creates shivering known as the earthquake. इसके एग्जाम्पल के तौर पे कैलिफोर्निया अर्थक्वेक 1906 में आया था, जिसके कारण जो है सैन एंड्रियास फॉल्ट 640 किलोमीटर लंबा बन गया था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखते हैं इसके अंतर्गत, तो हमारा है कैलिफोर्निया अर्थक्वेक इन 1906 में आया था। इसके कारण जो है सैन एंड्रियास का फॉल्ट 640 किलोमीटर लंबा क्रैक डेवलप हो गया था। इसके कारण फॉर्मेशंस ऑफ द 640 किलोमीटर लॉन्ग सैन एंड्रियास फॉल्ट, फॉर्मेशंस ऑफ द 640 किलोमीटर लॉन्ग सैन एंड्रियास फॉल्ट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल इसके अंतर्गत कोयना डैम है। कोयना डैम में भी यही बात हुई थी कि एन एक्टिव अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ द एक्टिव फॉल्टिंग बीनीथ द डेक्कन ट्रैप्स। अगला एग्जाम्पल हमारा जो है इसके अंतर्गत आएगा, अगला एग्जाम्पल हमारा कोयना डैम है। उसके अंदर भी एक फॉल्ट है कोयना डैम के अंदर, या कोयना रिवर जो है, जहां पे हम एक देखते हैं एक डैम बना हुआ है सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, वहां पे एक फॉल्ट है और ये डैम का पानी जो है एक एक्सर्ट किया प्रेशर नीचे की तरफ, और फॉल्ट लाइन कोई भी है तो पहले से ब्रोकन थी। उसका मतलब कि वही बाद में ऊपर की तरफ जब आया तो आसपास के एरियाज में महसूस किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है अदर काजेस यानी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। अगला हमारा फैक्टर्स नंबर 1 पे आइसो हमने पढ़ा था वोल्केनिज्म, नंबर 2 पे आइसोस्टेसी, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस में हमने फॉल्ट पढ़ा था, फॉल्ट लाइन और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी पढ़ी थी। अगली चीज हम इसी की कड़ी में पढ़ेंगे फैक्टर्स में हम इसी में अगली हमारी कड़ी हो जाएगी, 2 हो गया, ये तीसरे नंबर पे जो है हम इसको अदर्स कह सकते हैं, अदर काजेस। अदर काजेस में मेनली हम लिखते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं उसके अंतर्गत हमारे आएंगे मैन मेड फैक्टर्स, पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड ऑयल। तो इसमें हम लिखते हैं सीक्वेंस वाइज, पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑयल। बहुत ज्यादा अगर पानी जमीन से निकाल लिया जाए या गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा अगर ड्रिलिंग होती है, ऑयल वगैरह की निकाल लिए जाते हैं, उसके कारण भी आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस होगा, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी, वेट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके कारण अर्थक्वेक आ जाएगा। डीप ग्राउंड माइनिंग, डीप ग्राउंड माइनिंग, डीप ग्राउंड माइनिंग का मतलब कि बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर खनाई की जाए और वहां से माइनिंग की जाए तो उसके कारण भी हमारा अर्थक्वेक आ जाएगा। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट, हमने पूरी दिल्ली को जिस तरह से रेट अपनी सुराख बना करके चाल देता है, ऐसे दिल्ली को पूरा चाल करके रख दिया, इसके कारण भी फ्यूचर में अर्थक्वेक के एक तरह से प्रोन जोन में आएगा। ब्लास्टिंग ऑफ द रॉक्स बाय डायनामाइट्स एंड न्यूक्लियर टेस्ट। अगला हमारा है ब्लास्टिंग ऑफ द रॉक्स बाय डायनामाइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियर टेस्ट, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एंड न्यूक्लियर टेस्ट, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। हमने क्या किया कि डायनामाइट्स लगा लगा करके पूरे माउंटेन्स को, पूरी रेंज को, पूरी पहाड़ी को उड़ा दिया और रुई की तरह वो पहाड़ी उड़ गई। एक समय ऐसा आया कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस क्रिएट होगा और वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस रहेंगे। रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हमने ऐसा किया। कभी कभी न्यूक्लियर टेस्ट में भी हमने जो है जमीन के अंदर जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल सेट करके काफी ज्यादा जो है अर्थक्वेक के और जो है अर्थ के सिस्टम को डिस्टर्ब किया, उसके कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। अगला फैक्टर हमारा जो है इसी में वाटर रिजर्वायर यानी सुपर इनकम्बेंट लोड, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, इसी की कड़ी की अगली जो है इसी में हमारा हो जाएगा रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक या वाटर रिजर्वायर अर्थक्वेक, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो सुपर इनकम्बेंट लोड ऑफ द रिजर्वायर में डिसबैलेंस और क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम या आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। इसका कारण हो सकता है जो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है, इसमें हम लिख सकते हैं सुपर इनकम्बेंट लोड exerted by reservoir water, superincumbent load exerted by the reservoir water
may create disbalance, may create disbalance, disequilibrium in isostatic, in isostacy, may create imbalance in isostatic balances, may create disequilibrium in isostatic balances, जिसके कारण अर्थक्वेक आ सकता है। इसकी बेस्ट मिसाल हमारी जो है हूवर डैम, हूवर डैम इसकी बेस्ट मिसाल हमारी जो है हूवर डैम, हूवर डैम मेड लेक मीड, लेक मीड, लेक मीड ऑन कोलोराडो रिवर, ऑन कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर्स, ऑन कोलोराडो रिवर्स, कोलोराडो रिवर्स। सपोज दैट हम अगर इसको इस तरह से कुछ समझ लेते हैं, यहां पे मान लें कि ये हमारा जो है यूएस है, ये यूएस का कुछ ऐसा मैप है सपोज दैट, और यहां पे ये कुछ इस तरह से है यूएस, यहां पे एक रिवर आती है, ये रिवर जो है इस तरह से कुछ है, कोलोराडो रिवर है, यहां पे एक डैम बनाया गया था, इस डैम का नाम रखा गया था हूवर डैम, और इसके आजू बाजू में जो ये वाटर है, जो यहाँ पे हिस्से पे ये जो वाटर डिपॉजिट हुआ, इसका नाम रखा गया लेक मीड, और ये वाटर की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ, उसके कारण 1936 में एक बार अर्थक्वेक आया था, जिसको हम कह सकते हैं कि हूवर डैम लेक मीड अर्थक्वेक इन 1936। अगला हमारा जो है कोयना डैम, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र पे, 1967 में भी ये अर्थक्वेक आया था, वो भी इसी की मिसाल है। तो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का मतलब कि मिसाल के तौर पे कोयना डैम बनाया गया और उसके कारण 1967 में अर्थक्वेक आया था। कोयना ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कोयना डैम के नीचे जो है फॉल्ट लाइन भी है, जो वेस्टर्न घाट वाली फॉल्ट लाइन है, उसको जब हम इंडियन अर्थक्वेक का है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उस पर बातें करेंगे। 1967 में यहां पे अर्थक्वेक आया था। अगला हमारा फैक्टर्स जो है नंबर तीसरे के बाद नंबर फोर्थ पे हमारा फैक्टर्स है, अगला हमारा ये फैक्टर्स हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उससे रिलेटेड हम बातें कर लें, ये हमारा जो है आखिरी काज है। हमने नंबर 1 पे बातें की थी वॉल्केनिज्म की, वॉल्केनिज्म की। नंबर 2 पे हमने आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस की बातें की, जिसमें हमने फॉल्ट लाइन की बात की, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की बात की। हमने अदर्स फैक्टर में जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के बारे में बातें की। हमारा लास्ट फैक्टर जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उससे रिलेटेड क्या क्या कारण है कि अर्थक्वेक आता है। प्लेट्स मूविंग या प्लेट्स मूव इन इट्स डिफाइंड डायरेक्शंस ड्यू टू द convectional currents. Plates moving in relations to each other, plates moving in relations to each other इसमें हम लिख सकते हैं plates moving in relation to each other, plates moving in relation to each other due to the convectional current, due to the convectional
करंट। प्लेट्स जो है हमेशा अपने एक डिफाइंड डायरेक्शंस में अपने एक रूट्स पे मूव करते रहते हैं कॉन्वेक्शनल करंट्स के कारण। ऑल द टेक्टोनिक इवेंट्स आर टेकन प्लेस, ऑल द टेक्टोनिक events are taken place at its boundaries. All the tectonic events is taken place at its boundaries. All the tectonic events is taken place along the boundaries. Now we will discuss all these boundaries. Now we will discuss all these boundaries. तो हेडिंग लिखते हैं प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में, बिहार वगैरह में भी और यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड पूछा गया कि प्लेट टेक्टोनिक का अर्थक्वेक से क्या संबंध है, वो क्या कारण है जहां पे प्लेट्स बाउंड्रीज होती हैं वहीं पे अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। इसीलिए अब हम इस प्लेट्स बाउंड्रीज के बारे में सीक्वेंस वाइज पढ़ लेते हैं। So there are three types of the boundaries. There are three types of the boundaries. नंबर 1 पे जो है there are three types of the boundaries. Three types of boundaries. नंबर 1 पे कंस्ट्रक्शन बाउंड्रीज, कंस्ट्रक्शन मार्जिन या डाइवर्जेंस प्लेट। नंबर 1 पे हमारा जो है कंस्ट्रक्शन, नंबर 1 पे कंस्ट्रक्शन मार्जिन या डाइवर्जेंस प्लेट। या डाइवर्जेंस बाउंड्री। नंबर 2 पे जो है डिस्ट्रक्शन मार्जिन या कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। नंबर 3 पे हमारा जो है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, या हम उसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब तीनों के बारे में हम सीक्वेंस वाइज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे ये कॉजेज खत्म हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे हमने लिखा कंस्ट्रक्टिव यानी कि डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। नंबर 1 पे हमने लिखा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री या डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि प्लेट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम द ridges, फ्रॉम द रिफ्ट वैलीज। प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम मिड ओशियनिक रीजेस। ये वाली कंडीशंस हमारी है प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम मिड ओशियनिक रीजेस। प्लेट जो है ओशियनिक रिज जो बीच वाला ओशन का हिस्सा है, जहां पे नीचे से मैग्मा लावा प्लूम्स आकर के सरफेस पे डिपॉजिट होता है और रिज बनाता है, वहां से प्लेट अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है।
जब अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेगा तो उसी को डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन कहा जाएगा। जब लावा नीचे से निकल करके सरफेस पे जमा होगा तो कंस्ट्रक्शंस का काम करेगा, तो उसको कंस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्री कहा जाएगा। रिफ्ट एंड फॉल्ट्स इन रीजेस, यहां पे जब लावा निकल करके आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि रिफ्ट एंड फॉल्ट्स इन रीजेस। जब रिफ्ट और फॉल्ट रहेगा रीजेस में तो टेक्टोनिक इवेंट्स along ridges or boundaries, tectonic events along these ridges and rift valley, ये जो टेक्टोनिक इवेंट्स होगा उसी को हम कह सकते हैं movements of the plate is slow and upwelling of lava due to the fissure is also slow। इस वाली कंडीशंस में क्या हो रहा है, movements of the plate is slow। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, upwelling of lava is also slow। This upwelling of lava creates या exert pressure, exert force on surface या lower portions of the surface। These exertions of the forces by the upwelling of the lava create tremors। These tremors we can say earthquake। इस वाली कंडीशंस में shallow earthquake focus along the ridges। Fissure is also fissure type the eruption is taken place here। Upwelling of the lava is also slow। Its mean fissure type eruption, fissure type eruption। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि फोकस 25 से 35 किलोमीटर तक डेप्थ ही हो सकता है, तो शैलो अर्थक्वेक फोकस लिख सकते हैं यहां पे, शैलो अर्थक्वेक फोकस इट्स वेरीज 25 to 35 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। अर्थ सरफेस से 25 से 35 किलोमीटर डेप्थ तक ही इसका फोकस होता है। रेगुलर ट्रिमर्स इज नोटिस्ड हेयर बट वेरी स्पीड इज मैग्नीट्यूड्स इज वेरी लो, विद वेरी लो मैग्नीट्यूड्स। अर्थक्वेक यहां पे रेगुलर नोटिस किया जाता है, उसका फोकस भी ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है। उसके अलावा अर्थक्वेक रेगुलर नोटिस किया जाता है, ये डिवास्टेशंस वाला अर्थक्वेक नहीं होता है। इसका मतलब कि ये वाला जो कंस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्रीज है, यहां पे रिफ्ट वैली है बीच में, यानी कि फॉल्ट है। प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। उसके अलावा मैग्मा अपवेलिंग है। इन कारणों से यहां पे अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट हमारा जो है, इसका अगर हम डायग्राम कुछ बना लें समझने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। सपोज दैट ये मान लीजिए कि हमारा ये मिड ओशियनिक रीजेस, यहां से लावा अपवेलिंग, ये जो है हमारा पूरा का पूरा लावा हुआ यहां पे डिपॉजिट हुआ। मिड जो है अटलांटिक रिज की अगर हम बातें करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट इन अपोजिट डायरेक्शंस, एक प्लेट इधर मूव कर रहा है, एक प्लेट इधर मूव कर रहा है। लावा जो है यहां से नीचे से ऊपर की तरफ आकर के इस पे जमा हो जा रहा है। ये वाला जो पोर्शन हमारा है बीच में, दिस इज द रिफ्ट वैली, दिस इज द रिफ्ट वैली। मैग्मा अपवेलिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ,
deposited over the surface. It exerts the pressures. Here, upwelling of the lava create the shaking and shiverings and tremors. We can say earthquake. अगला हमारा जो है, this is the mid Atlantic oceanic ridge. This condition is found in mid Indian oceanic ridge, East Pacific rise. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस कंडीशन इज फाउंड इन मिड अटलांटिक ओशियनिक रीज, मिड इंडियन ओशनिक रीज। अगला हमारा इसी में है ईस्ट पैसिफिक रीज या राइज। ये वाली कंडीशन जो है इन तीन जगहों पे पाई जाती है, मिड इंडियन रीज, मिड अटलांटिक ओशियनिक रीज, ईस्ट पैसिफिक रीज। अब अगली कंडीशंस हमारी जो है ये कंस्ट्रक्शंस के बाद जो है ये कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। अगला जो है हमारा है कन्वर्जेंट के बाद जो है कंस्ट्रक्शंस के बाद हमारा अगला वाला पॉइंट आएगा बी नंबर। इसी में प्लेट टेक्टोनिक में ये कंस्ट्रक्शन था, तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, या इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, व्हेन टू प्लेट्स coming close to each other, one times will come when both the plates will collide with each other. When plates collide with each other, the lighter plates and denser plates, the denser plates will subduct to the another plates. When denser plates subduct to the another plates, the portion which is subducted inside the lighter plates known as the Benioff zone. This Benioff zone create a 45-degree angle slab. In general, all the earthquake focus is occurred. All the focus of the earthquake is found over this Benioff zone. The extension of this Benioff zone cannot be beyond 700 किलोमीटर। इस बेनियाफ जोन का एक्सटेंशन 700 किलोमीटर डेप्थ से ज्यादा नहीं हो सकता। 700 किलोमीटर से अगर ये ज्यादा होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि अर्थक्वेक्स फोकस cannot be beyond the depth of 700 किलोमीटर। अब हम बातें करते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। When two plates collide with each other, इसकी कंडीशंस के बारे में बातें करते हैं। नंबर एक पे हम लिखते हैं, नंबर एक पे लिखते हैं टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर। यहां पे हम लिखते हैं टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर। टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, heavier plate subducted, heavier plate subducted
heavier plates subducted, heavier plates subducted, subductions of the one plate's boundary along Benioff zone, यानी कि subductions of one plate boundary along Benioff zone, along one plate boundary along Benioff zone. The subductions of one plate boundary along Benioff zone, faulting, folding and trenches is formed. Faulting, folding and trenches formed. Faulting, folding and trenches formed. Tectonic events along the boundaries, tectonic events along the boundaries, e.g. Benioff zone, ये टेक्टोनिक इवेंट्स जो है इसी बेनियाफ जोन के आजू बाजू में ही होता है। तो माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिक इरप्शंस, ट्रेंचेस वगैरह जो है इसी के आसपास ही होंगे टेक्टोनिक इवेंट्स के। When two plates collided with each other, heavier plates subducted. Subductions of one plate boundary along the Benioff zone, faulting, folding and trenches formed along these boundaries. All the tectonic events are taken place along the boundaries. These boundaries we can say the Benioff zone. इसको अगर हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं, कभी कभी दोनों प्लेट्स अगर इक्वल डेंसिटी के हैं तो दोनों एक तरह से वेल्डिंग हो जाते हैं और फोल्ड माउंटेन बना देते हैं। तो वहां पे भी अर्थक्वेक आएगा, बिकॉज देयर इज द फोल्ड, देयर इज द फॉल्ट, देयर इज द क्रेक, क्योंकि ज्वाइंट है वो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक प्लेट ज्यादा हाइवियर हो, एक लाइटर हो। हाइवियर प्लेट इनसाइड अर्थ जो है सबडक्ट हो जाएगी, अर्थ के दूसरे प्लेट के नीचे चली जाएगी। जिस एंगल पे हाइवियर प्लेट नीचे जाएगी उसी वाले पोर्शन को, उसी स्लेब को कहा जाता है बेनियाफ जोन। जब ये बेनियाफ जोन है उसी पे ही फोकस बनता है। ये जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहां पे कभी कभी क्रेक डेवलप होता है यानी फॉल्टिंग, कभी कभी फोल्ड यानी फोल्ड माउंटेन, वहां पे बीच में ट्रेंच भी बन जाते हैं। ऑल ओवर मिला करके हम कहते हैं वहां पे एक जॉइंट वाली कंडीशन से दिखती है, जिसके कारण वहां पे चट्टान कमजोर होती है। जब जॉइंट रहेगा, चट्टान कमजोर रहेगी, तो हमेशा वहां पे अर्थक्वेक आता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शंस है। अब इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझा जाए, मिसाल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ पे ये वाला पोर्शन इतना हम मिटा देते हैं। मान लेते हैं हम जो है यहां पे मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये मान लेते हैं हम पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है यहां पे हमारा। ये हमारा जो है अमेरिकन प्लेट है, चाहे साउथ अमेरिकन ले लें या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ले लें।
पैसिफिक प्लेट ये हमारा ओशियनिक प्लेट है। ओशियनिक प्लेट ज्यादा डेंसर होगी, ये प्लेट हमारा डेंसर है। ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये लाइटर प्लेट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि लाइटर प्लेट है, इसीलिए ये वाली प्लेट हमारी जो है ज्यादा अंदर डेप्थ तक चली गई, और इस तरह से यहां पे जो है, यहां से ओशियनिक प्लेट जब अंदर जाएगी, इस वाले पोर्शंस को जो यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा है, यह मैक्सिमम डेप्थ इसका 700 किलोमीटर तक हो सकता है। इसी को हम कहते हैं बेनियाफ जोन। दिस स्लेब इज नोन एज द बेनियाफ जोन। ये बेनियाफ जोन 700 किलोमीटर ज्यादा डेप्थ से नहीं हो सकती। सारा का सारा फोकस इसी जोन पे बनता है। कभी फोकस यहां बनेगा, कभी 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 यहां बनेगा। 700 किलोमीटर डेप्थ से ज्यादा फोकस नहीं बन सकती। इस तरह से यहां पे वॉल्केनिक एरप्शंस जब होगा तो ये लावा यही मेल्ट होकर के यहां पे आएगी ऐसे लावा, और कहीं पे एक जो है लावा जो निकल करके आएगी, यही लावा यहां पे एक माउंटेन्स लाइक फीचर्स बनाएगी। इसी को हम कहते हैं आपको जो है रॉकीज या एंडीज। दीज आर द माउंटेन्स ऑफ द रॉकीज एंड एंडीज। इसको हम कह सकते हैं रॉकी माउंटेन्स या एंडीज माउंटेन्स। तो हमने क्या देखा कि जब दो प्लेट आपस में टकराई तो वहां पे ये क्या है, हमारा ट्रेंचेस हैं। दीज आर दी ट्रेंचेस, दीज आर दी ट्रेंचेस। यानी कि हमने देखा यहां पे दो प्लेट जब टकराती हैं तो हमने देखा कि ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हुआ। यहां पे वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहा है, वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहा है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पे फोल्ड माउंटेन्स यहां पे बन गया हमारा, यहां पे हमारा फोल्ड माउंटेन्स बन गया। ये जो है क्रेक है एक तरह से, यानी फॉल्ट या रिफ्ट है, या फॉल्ट या एक तरह से क्रेक यानी ज्वाइंट है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे हिस्से में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक अगर आएगा तो अर्थक्वेक इसी बेनियाफ जोन पे ही, क्योंकि यही ज्वाइंट है, यही स्लेब है जिसपे कि अर्थक्वेक बनेगा। ये जो है 45 डिग्री का एंगल पे है। इससे अगर कंपैरिजन करेंगे इससे तो ये 45 डिग्री पे ही हमारा बेनियाफ जोन होता है, और इसी पे सारा का सारा अर्थक्वेक आता है। ये अर्थक्वेक अगर यहां पे आएगा तो ये ज्यादा नोटिस किया जाएगा इसकी तीव्रता, क्योंकि यहां पे सीज्मिक वेव जल्दी पहुंच जाएगी, ज्यादा स्पीड से पहुंचेगी। यही अर्थक्वेक हमारा अगर नीचे कहीं पे यहां पे अगर बेनियाफ जोन पे बनता है हमारा फोकस, तो इसकी तीव्रता यहां पे कम पहुंचेगी, तो कम यानी इंटेंसिटी का या मैग्नीट्यूड्स का अर्थक्वेक वहां पे आएगा, कम डिवास्टेशन होगा। तो ये निर्भर करता है कि बेनियाफ जोन पे कहां पे हमारा फोकस बनता है, और फोकस यही इसी पे ही कहीं बनता है। इस तरह से ये जहां तक इसका असर फैला हुआ, इसका मतलब यहां से लेकर के ये हिस्सा और ये पूरा का पूरा इतने एरियाज में हमारा अर्थक्वेक रेगुलर आता रहेगा। और ये हमारा वजह क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इस वाली कंडीशंस में ये मैक्सिमम डेप्थ हमारा फोकस का 700 किलोमीटर तक होगा। 700 से नीचे ये जो स्लेब है ये बर्न हो जाता है, उससे ज्यादा नीचे तक ये रहेगा ही नहीं, वो बर्न हो जाएगा। इसकी अगर हम मिसाल लेते हैं तो रिंग ऑफ फायर ऑफ द पैसिफिक, इसकी अगर हम मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए इसको, तो जो है तो अगर हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, जो हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में हमने अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसमें हमारा नंबर 1 पे हो जाएगा रिंग ऑफ फायर ऑफ द पैसिफिक। नंबर 1 पे हमारा इसमें है रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक, रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक। पैसिफिक ओशन में चारों तरफ से हमने देखा कि जो रिंग ऑफ फायर है जिसमें रॉकीज, एंडीज, एशियन आइलैंड्स, आर्चिपिलागोस, फेस्ट्यून्स, इसमें हमारा जो है पैसिफिक में क्या है, रॉकीज, एंडीज, रॉकीज, एंडीज, और हमारा जो है एशियन आइलैंड्स,
एशियन आइलैंड्स, एशियन आइलैंड्स, एशियन आइलैंड्स में हमारे जो है जैसे कि जापान, फिलीपाइंस, जापान, फिलिपाइन वगैरह, आर्चीपिलागोज ऑफ द एशियन आइलैंड्स, फेस्टून्स ऑफ द एशियन आइलैंड्स। अगर हम इसको रिंग ऑफ फायर का मैप बना देते हैं तो कुछ इस तरह से इसको समझा जा सकता है। यहाँ पे मैप के द्वारा मान लेते हैं ये हमने जो है चेंचू पेनिनसुला बनाया, ये अगर हमारा मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ जापानीज आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ये फिलिपाइंस हैं, ये हमारा जो है आपका जावा, सुमात्रा, जावा, और ये हमारा सेलेब्स आइलैंड्स वगैरह हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा इरियान जया करके आइलैंड्स हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पे है कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे जो है ये मान लेते हैं हम अमेरिका है हमारा जो है, एक मिनट कुछ गलत हो गया, ये मान लेते हैं हम जो है अमेरिका है। ये यूएस मान लेते हैं इधर, और इधर जो है हमारा ये जो है कुछ इस तरह से ये है। ये पूरा का पूरा जो है आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में अगर हम देख लें यहाँ पे, तो अगर इसको डायग्राम के समझे, ये पूरा का पूरा जो है एक तरह से ये पैसिफिक ओशन जो है यहाँ से इधर आया और ये वाले जो है इधर आकर के कोलाइड होकर के टकराया। ये पूरा का पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा इधर ऊपर वाला हिस्सा कुछ इसका, ये रॉकीज एंड एंडीज, ये रॉकीज एंड एंडीज, ये जो है हमारा नीचे एंडीज था, ये हमारा रॉकीज है। ये पूरा का पूरा दिस इज द रिंग ऑफ फायर, दिस इज द रिंग ऑफ फायर। तो रॉकीज, एंडीन एंड एशियन आइलैंड्स लाइक जापान, फिलिपाइंस एंड अदर फेस्टिवल्स वगैरह, ये सारे के सारे इसको हम कह सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर है। नेक्स्ट हमारा इसी के अंतर्गत जो है कोलिजन ऑफ द यूरेशियन प्लेट इन नॉर्थ। अगला हमारा इसी में जो है रिंग ऑफ फायर के बाद जो है अगली कंडीशंस हम कह सकते हैं, इसी में हमारी जो है अगली कंडीशंस हमारी जो है नंबर 1 पे हमारा जो है एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, रिंग ऑफ फायर हो गया।